इतने में एक बच्चे गायब हो गए। शुरू कर दूं? रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग डाल दूं ग्रुप में। ओके सर। ओके, तो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा है एंथर का, है ना? एंड वी हैव स्टडीड दैट एंथर जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज sorry, stamen is consist of two part, one anther which is bilobed and a long filament. Filament is no role, filament has no role in gamete formation or anything. It is just holding the anther high so that it can be exposed to the various type of pollen agents of pollination. The agents of pollination can be wind or water or some type of animals or something like that. So these are whenever they come in contact with the flower, so their body will get this type of pollen. Okay, and wind pollinating method, the pollens are so light, they are feathery, that they are with the help of wind they will be released and they will be taken away with the air to the different flowers and different locations. Okay, so that much we have studied. Then we have studied that they are dithecous, and each theca has got each lobe has got that is dithecous भी है, bilobed भी है, bilobe में हर lobe के अंदर two chambers हैं, ठीक है? And they layers जो अपन ने tissues पढ़े थे उसमें तो they had that outermost epidermis and then one layer of endothelium and then two or three layers of middle layers, and then we have studied that inside there will be a layer of tapetum. Tapetum has got the nutrition, it has got multinucleated state, and the then cytoplasm, and the function of tapetum is to provide nourishment to the growing pollen. And the innermost cells होते हैं, they are sporogenous mother cells. Sporogenous mother cells जो हैं, they are the potential cells which will what do you call, which will form the pollen grain. तो यहाँ से पढ़ते हैं that each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise microspore tetrad. Tetrad मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, that is these four cells जो हैं, these we have studied that the microspore cells जो हैं they are 2n cell and the gametes are always haploid. So 2n cell has to undergo meiosis to produce haploid, that is n type of cells. तो वो meiosis जब हो रहा है तो जो चार cells बनेंगे, all the four cells are stick together. तो वो चार जो cells का एक group है, bunch of four cells, they are called tetrad. So here it is shown on this figure. You can see 1, 2, 3, and 4. These are four haploid cells. Okay, so this is called tetrad, microspore tetrad. Okay, that microspore tetrad जो है वो actually this is the beginning, that is meiosis होने के बाद जो है, मतलब अब इसके आगे का process इसके अंदर ही होगा. As the anther matures and dehydrates, the microspore dissociates from one another and develop pollen grains. Okay, yesterday's class I told you a number of times, or even before, I said the pollen grains are not gametes. Pollen grains are male gametophyte. Phyte word अपन use करते हैं plant. प्लांट बॉडी के अंदर या जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गन्स, उनकी बॉडी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव. और वी कैन से वन इज स्पोरोफाइट एंड वन इज गैमेटोफाइट. द एंटायर प्लांट व्हिच इज मेड अप ऑफ 2n सेल्स, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. सो उसके अंदर उसका रूट भी आएगा, उसमें स्टेम भी आएगा, उसमें लीफ भी आएगी, इसमें फ्लावर भी आएगा, फ्लावर के सेपल भी आएंगे, पेटल भी आएंगे, एंथर भी आएंगे एंड ओवरीज भी आएंगे. दे ऑल आर मेड अप ऑफ 2n. So all the diploid part, 2n part of the cell plant are known as sporophyte. And gametophyte क्या है? जो स्पोरोफाइट के एंथर के और ओवरी के जो सेल मियोसिस में अंडरगो हुए हैं, दे विल प्रोड्यूस आइदर pollen grain और ovule. तो ये pollen grain और ovule जो हैं, they are the only gametophyte. अंडरस्टूड? अगर आपको क्लास 11th का याद है, अगर हमने वहां पे पढ़े थे कि वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक है प्लांट, तो उनकी एक लाइफ जो है हेप्लॉन्टिक होती है और दूसरी लाइफ जो है डिप्लॉन्टिक होती है. हेप्लॉन्टिक लाइफ में दे विल बी एक्टिंग एज अ गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ में दे विल बी एक्टिंग एज स्पोरोफाइट. तो यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास अलग अलग फेज नहीं है,
है ना. The entire plant is sporophyte and gametophyte is a very short living. केवल उतना सा, maybe 10 hours or 1 day or 2 days, इतना सा वो टाइम है जिसके अंदर वो स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट बना रहा है. ठीक है. तो और गैमेटोफाइट एक बार बनने के बाद they will be shed off from the plant और they will be undergo fertilization. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर वो जो है खत्म हो जाएंगे. ठीक है. वो डिजनरेट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे. दे विल शेड. ओके. तो ये जो पोलन ग्रेन आप हमेशा याद रखना, दे आर नॉट पोलन बट दे आर नॉट गैमीट बट दे आर मेल गैमेटोफाइट. तो ये चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, so that it will always be with you. Now since I am not having the book, so you will have to make your own notes there. Okay. So आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जो पोलन ग्रेन है, pollen grains are male gametophyte which carries male gametes or male cell, they are commonly known as. ठीक है. मेल सेल और मेल न्यूक्लियाई जो भी आप उसको कहेंगे, they are CLEI, they are commonly known as. ठीक है. ये बात आप एक जगह पे लिख कर रख लीजिए. ओके. पोलन ग्रेन. Inside each microsporangium there are several thousands of microspores or the pollen grains that are formed, that are released with the dehiscence of the anther. मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको कल कि वो जो each chamber है ना, उन चैम्बर के अंदर इतने सारे पोलन, मैंने आपसे कहा था दैट इज अगर 1000 सेल्स हैं तो 4000 पोलन ग्रेन्स बनेंगे. अगर 10,000 सेल्स है तो 40,000 बनेंगे, बिकॉज ईच सेल विल प्रोड्यूस 4. दैट्स वो टेट्राड बना रहा है और टेट्राड के चारों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे के डेवलपमेंट के साथ. तो 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे तो 4 गुना हो जाएंगी सेल्स. अब 4 गुना सेल्स हो जाएंगे उतनी सी जगह के अंदर, तो जितनी जगह के अंदर जितनी सेल पहले ऑक्यूपाई हो रहे थे उसकी 4 गुना होना मतलब उसको फाड़ देंगे. ठीक है. तो विद द dehiscence इट विल रिलीज ऑल द पोलन ग्रेन. चलिए हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की. क्या होता है पोलन ग्रेन? तो पोलन ग्रेन्स, the pollen grains are representing the male gametophyte. यही चीज मैंने भी आपको बोली थी. they are not male cells but rather they are male gametophyte. If you touch open the anther of hibiscus, that is China rose, hibiscus में बहुत छोटे हैं, anther are very very small. तो आप हिबिस्कस को छोड़ दीजिए, आपको सबसे बढ़िया क्लियरली विजिबल एंथर दिखेंगे धतूरा के अंदर. धतूरा आप सबने देख रखा है, शिव जी को जो चढ़ाते हैं, बड़ा सा फ्लावर है और उसके काफी बड़े बड़े एंथर आते हैं. ठीक है. तो यू कैन इजिली कट ओपन दैट और आपको खोलने की भी जरूरत नहीं. अगर आप देखें क्या नाम से इसको क्या कहते हैं, अभी याद आ जाएगा 2-3 मिनट में. तो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स इन विच द फ्लावर है लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन इट. ठीक है. वो गिर जाते हैं वहीं पे, तो आप उनको देख सकते हैं. इफ यू टच ओपन द एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find a deposition of yellowish powdery grain on your on your finger. तो आप टच करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएंगे. ठीक है. तो ये जो फ्लावर हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं येलो कलर के, अब वो कलर तो क्या, इट्स नॉट नेसेसरली ऑलवेज येलो बट बाय एंड लार्ज दे आर येलो. तो वो जो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स हैं उनको अगर आप थोड़ा सा हैंड लेंस लगाएं, आपको हैंड लेंस की जरूरत नहीं है आजकल, अपना मोबाइल लें, उसके कैमरेज में जो है मैक्रो पे जाएं और फोटो खींच दें, बिल्कुल पास में ले आ करके और फिर उसको बड़ा करके देख लें. यू विल बी एबल टू सी द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ ऑल द pollen grains. तो देखिए, sprinkle these pollen grain on a drop of water taken on a glass slide and observe it under microscope. तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करें, उसको सिंपली एक ब्लैक सरफेस के ऊपर, ब्लैक शीट हो आपके पास में, आपका कैसे, जो मेरा लैपटॉप यहाँ पे ब्लैक है, तो अगर मैं इसके ऊपर गिरा देता हूँ और उसके बाद मैं जूम करके और मैक्रो में फोटो लेता हूँ मैं उसके, तो आई विल बी एबल टू सी द विविड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. देन यू विल बी रियली अमेज्ड टू एट अ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, शेप, साइज, कलर एंड डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन. कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके साइज शेप से क्या है, मतलब इट इज, दे आर नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ टू बी अट्रैक्टिंग पोलन ग्रेन, मतलब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बट
वो हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर इज इंटाइन, इनर लेयर इज जस्ट मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज एज लिविंग एज एनी अदर मेम्ब्रेन। ओके, एक बच्ची नहीं दिख रही है, कनिका कहाँ गई, ठीक है। तो वो लिविंग सेल है, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल कोमल सी सेल है, लेकिन उसके ऊपर एक टफ वॉटी कवर है, टफ हार्ड कवरिंग इज देयर, दैट कवरिंग इज नोन एज स्पोरोपोलिन एक्साइन। वो जो एक्साइन है वो इसको ये ब्यूटीफुल शेप दे रहा है। ये आर्किटेक्चर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ वाले इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ऑल स्ट्रक्चर आर बिकॉज ऑफ द एक्साइन। ये इसको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग नाउ। यू मे लाइक और यू मे नॉट लाइक, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको ब्यूटीफुल कर रहे हैं बिकॉज हम गुणगान कर रहे हैं बायोलॉजी की वंडर का, दैट इज व्हाई, ठीक है। नाउ बात करते हैं, देखिए pollen grains आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter, क्लियरली विजिबल, आपको दिख जाएंगे नेकेड आई से, आपको कोई माइक्रोस्कोप के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखे तो आप केवल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अदरवाइज pollen grain you can see by naked eye only। ओके, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर दिख रही हैं। अगर आप यहाँ वाली डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे इनर लेयर और बाहर वाली लेयर दिख रही है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर एंड दिस 4 1। तो यहाँ चारों में एक एक दो लेयर दिख रही है आपको। इनर लेयर इज just made up of cell membrane and that is called intine. The outer layer is a tough, hard covering, hardest substance secreted by plant. प्लांट के अंदर इससे हार्ड कोई भी दूसरा सब्सटेंस नहीं होता, तो दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन। यहाँ देखिए, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, हार्ड आउटर लेयर को क्या कहेंगे, एक्साइन कहेंगे। और ये किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, ठीक है। काइटिन से भी ज्यादा टफ है ये। वी हैव स्टडीड अबाउट द काइटिन, दैट इज काइटिन जो है वो सड़ता नहीं है, वो प्रोटीन का बना है। स्पोरोपोलिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज एज टफ और रादर टफर देन द काइटिन, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, तो इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नॉन, ये याद रखना आप। आगे जस्ट 2-3 लाइन बाद में या 2-3 अगले पैराग्राफ के अंदर मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि आज तक हमको ऐसा एंजाइम नहीं मिला जो कि स्पोरोपोलिन को dissolve कर सके, डाइजेस्ट कर सके, and that is why when we study about the fossils we seize or we find number of sporopollen, pollen grain हमको मिल जाते हैं। तो फॉसिल्स में सबसे कॉमनली मिलने वाला फॉसिल्स होता है पोलन ग्रेन का, क्योंकि वो सड़ता ही नहीं है ना। वो लाखों साल पुराने भी पोलन ग्रेन वहां पर है, वो सड़े ही नहीं है, वो वैसे के वैसे पड़े हैं, ना सर्दी ने उनका कुछ किया, ना गर्मी ने, ना उनको एसिड ने पिघलाया, ना उनको बेस ने डिसॉल्व करा, तो वो वैसे ही मिल जाएंगे। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। अपर्चर वर्ड का मतलब जानते हैं, अपर्चर मतलब पोर्स, छेद, छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनको अपर्चर कहते हैं। कैमरे के अंदर जो जगह होती है जहाँ से फोटो खींचता है उसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो लेंस में भी आपने पढ़ा है अपर्चर किसको कहा था अपन ने, जब आपने लेंस पढ़े थे तो अपन ने कहा था दैट इज द लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, जो उसकी अक्रॉस द डायमीटर होती है उसको हम अपर्चर कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अपर्चर है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम उसका जो मतलब जो पोर है, तो यहाँ पे तो बहुत ही छोटा सा है ना। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, रादर मैं एक डायग्राम कहीं से उतार लेता हूँ बनाने का, तो कहाँ प्रश्न उठता है, तो हम यहाँ से उठा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। pollen, structure of pollen grain. ओके, इमेज तो हम देख पाएंगे कि इंटाइन और एक्साइन और उनके बीच में क्या कुछ है। बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन अच्छा आपको समझाने लायक, एक ही में दोनों तीन हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ अ pollen grain, ये वाला ले लेता हूँ और इसको शेयर कर देता हूँ। Okay, so you can see this diagram. Yes, sir.
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिन जो लेयर है वो इंटाइन की है और बाहर जो वॉटी लेयर दिख रही है वो एक्साइन की है। यहाँ पे भी देख लेते हैं इस डायग्राम में, थोड़ा स्लो दिखा सिस्टम घूम करके। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको थिन लेयर जो है वो इंटाइन है और जो बाहर रफ लेयर दिखा रखी है वो एक्साइन है। एक्साइन जो है वो कई जगहों पे बिल्कुल पतली हो जाती है और वो इंटाइन के कांटेक्ट में आ जाती है। जिस जिस जगह पे ये इंटाइन के कांटेक्ट में है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, है ना, ये वाली जगह, ये वो जगह है जहाँ पे एक्साइन आर वेरी थिन, सो इट इज कमिंग डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द इंटाइन। सो इन जगहों को हम कहेंगे जर्म पोर। तो जब भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना चाहेगा, जब भी उसको सूटेबल कंडीशंस मिल जाएंगे, तो द पोलन ट्यूब विल फॉर्म फ्रॉम द जर्म पोर। ये जो जगह दिखा रखी है, ये जगह जो है उन्हीं जगहों से बनी है। जैसे ये वाली जगह थी जहाँ पे ये बिल्कुल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एक्साइन जो है वो बिल्कुल पतली है उस जगह पे, तो पोलन ट्यूब को निकलने का रास्ता मिल जाता है यहाँ से। ओके, इज इट क्लियर? तो इंटाइन और एक्साइन का जो फंक्शन है वो क्या है? इंटाइन जो होती है वो तो एक जनरली सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट, मतलब सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, और एक्साइन का काम जो है वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है प्रोटेक्ट? क्यों करना है प्रोटेक्ट? बिकॉज पोलन ग्रेन जो है, अगर मतलब वो तो सूखे में रहेगा, वो तो बाहर आ जाएगा कांटेक्ट हवा में, तो हवा में आएगा तो जल्दी मर सकता है। तो उसको मरने से बचाने के लिए, उसको एक सर्टेन लाइफ देने के लिए, जो जरूरी है कि उसको ड्राइनेस, डेसिकेशन और अदर टाइप के केमिकल्स वगैरह के कांटेक्ट से बचाने के लिए एक्साइन की लेयर की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक्साइन का समझ आ गया आपको, और जर्म पोर समझ आ गया। स्ट्रक्चर जब यहाँ पे कहीं आपकी बुक के अंदर डायग्राम नहीं दिखा रखा, कहीं पे भी पोलन ग्रेन का डायग्राम नहीं दिखा रखा है, लेकिन आप वो वाला डायग्राम, और नहीं तो आपको प्रैक्टिकल में बनाने को मिलेगा, जब आप स्लाइड बनाएंगे तब आपको वो डायग्राम बनाने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं बना कर रखूंगा ऐसी चीज, ताकि इन बिटवीन हमको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़े। ओके, तो ये जम्प पोर्स हो गए। जम्प पोर वो जगह है जहाँ से कि पोलन ट्यूब निकलेगी। तो देखिए, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर दैट इज कॉल्ड जर्म पोर, वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। वो इतना थिन हो जाता है कि वो इट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। ठीक है, तो ये जो अपर्चर दिख रहे हैं, अपर्चर किसको कहते हैं? बारीक से छेद को, या बारीक हो जरूरी नहीं है, छेद को कहते हैं। ठीक है, नाउ pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। मैंने अभी आपसे कहा था, क्योंकि वो सड़ ही नहीं रहा, वो ना केमी एसिड से कोई उसको कुछ हो रहा है, ना बेस से कुछ हो रहा है, ना टेम्परेचर का कोई असर पड़ रहा है, इसलिए पोलन ग्रेन आपको फॉसिल्स के फॉर्म में आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने भी मिल जाते हैं। ठीक है, दे आर वेल प्रिजर्व फॉसिल्स। द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। अब ये क्यों, मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले कहा था कि वो इसको खुरदरा रफ सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं ऑल दीज आर हैविंग सम टाइप ऑफ स्पोक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड। ये क्या करेंगे? सो दैट नो सूनर दे फॉल इनटू द स्टिग्मा दे विल स्टिक देयर। ठीक है, अगर वो स्मूथ होते तो फिसल के गिर जाते, तो उनको स्मूथ नहीं रखा है, उनको थोड़ा सा रफ सा बना दिया है। आप जानते हो, जब भी आप जब फेविकोल से या फेविस्टिक से किसी चिप्स को चिपकाना होता है, तो हम कह देते हैं उसको थोड़ा सा घिस लें, उसको थोड़ा सा रफ बना लें। रफ बनाने के बाद जो है, जैसे हम गम लगाएंगे तो आसानी से चिपक जाएगा। दो चिकनी चीजों को चिपकाना बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो उसके ऊपर से फिसल जाएंगे। अगर दो मार्बल को चिपकाना हो तो इट विल बी, यू विल हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लू जो सेकंड्स के अंदर सेट हो जाए, अदरवाइज से एकदम चिकनी चीजें चिपकते नहीं है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कुछ केमिकल्स रहते हैं। वो केमिकल्स कोई ग्लूइंग सब्सटेंस थोड़ी है, वो थोड़े म्यूकस से सब्सटेंस है, जिस पे कुछ जाए तो वहां पर रह जाए, बस इतना सा है। तो उसको एक थोड़ा सा रफ सा वो दिया ताकि वो फिसल के गिरे नहीं। तो पोलन ग्रेन आर वेल, सॉरी ये तो अपन ने पढ़ लिया था, आगे अपन है दैट इज द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? तो 2-3 कारण हो गए। पहली बात जो है, सबसे पहली बात कि सो दैट इट कैन प्रिवेंट डेसिकेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उठा लीजिए, है ना। तो पहली बात क्या है, पहला क्या है? टू प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, दैट इज ड्राई होने से बचाने के लिए। दूसरा, टू प्रिवेंट देम अगेंस्ट वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन। और तीसरा, टू मेक इट rough so that they easily stick on the surface of
स्टिग्मा। ठीक है, ये 3 इसके कारण होंगे जिसके के चलते उसको हमने पढ़ा है कि एग्जाइन जो है वो रफ क्यों है, हार्ड क्यों है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोर? जंप पोर का फंक्शन इसी का आगे लिख दूं, जंप पोर। जंप पोर क्या है? अ प्लेस where the exine is thinnest and the intine is exposed। ठीक है, क्या काम आएगा ये? फ्रॉम these jump pores the pollen tube germinates, comes out। ठीक है, तो इसलिए इसको जम बोला है। जम मतलब उगना है ना, किसी भी चीज को नया पैदा होना, एक्सटेंशन बन जाना, उसको जम कहते हैं। तो जम इस जगह से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज तो जम पोर का फंक्शन आपको समझ आ गया। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन एंड इट इज जस्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो ये किसके बने हैं? सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये तो बहुत ही थिन है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड when the pollen grain matures it contains two cells। एक तो इसमें रहेगी वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं ये वाले पार्ट को। हमने पढ़ा था जो टेट्राड बने हैं, टेट्राड के अंदर 4 सेल्स बने हैं। ईच सेल इज हैप्लॉइड सेल, one न्यूक्लियाई, ईच न्यूक्लियाई गॉट 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस ग्रोज, क्या करेगा ये? वो जो टैप्टम की सेल्स है उनसे न्यूट्रिशन लेगा और ये बढ़ जाएगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने पे इसमें बड़े वैक्यूल बन गए, वैक्यूल बन के और बढ़ गए। देन व्हाट हैपेंस? इट्स न्यूक्लियस अंडरगो अ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एसिमेट्रिक स्पिंडल व्हिच इज डिवाइडिंग द न्यूक्लियस इनटू टू, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। जो लार्ज न्यूक्लियाई है उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव एंड जो छोटा है उसको कहेंगे जनरेटिव। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइज केवल न्यूक्लियो प्लाज्म के कारण है, बट द क्रोमोसोम्स आर एग्जैक्टली इक्वल। तो ये पहले ही हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड के माइटोसिस हो जाने से 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। वन ऑफ देम, द लार्ज वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव एंड द स्मॉल वन इज कॉल्ड जनरेटिव। तो यहाँ पे अपन लिखा व्हेन द pollen grain is matured it contain 2 cells। 2 सेल्स कहाँ से आई है? बाय माइटोसिस। ठीक है, और उनमें से पहली वाली सेल को कहेंगे वेजिटेटिव एंड सेकंड को कहेंगे जनरेटिव सेल। ओके, वेजिटेटिव सेल का कोई खास रोल नहीं है, वो केवल पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल विल डीजनरेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो देखिए, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैविंग अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व एंड इट इज लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड इन न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। हमारा इंटेंशन तो इसी को पढ़ने का है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि 2 अलग अलग सेल नहीं बने हैं, सेल एक ही है। साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव का है, न्यूक्लियस उसके अंदर फ्लोट कर रहा है। तो देयर आर 2 न्यूक्लियाई बट 1 साइटोप्लाज्म है ना। इट इज स्पिंडल शेप एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये लाइन देखते हैं क्या लिखा है? ओवर 60% जितने भी प्लांट किंगडम में, मतलब एंजियोस्पर्म के किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स है उसमें 60% एंजियोस्पर्म शेड पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, तो 2 ही सेल रहेंगे। रिमेनिंग कितने बचे? 40%। 40% में क्या होता है? द जनरेटिव सेल विल अगेन अंडरगो अनदर माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किसका हुआ था? जो एक ही सेल बनी थी, दैट इज टेट्राड के अंदर, उसका एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ, एक लार्ज और एक स्मॉल न्यूक्लियर बना। न्यूक्लियर कंटेंट इज सेम, द न्यूक्लियर प्लाज्म इज डिफरेंट, वन हैज गॉट लार्ज एंड मोर न्यूक्लियर प्लाज्म, अदर वन हैज गॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म। तो जो बड़ा वाला है उसको हमने वेजिटेटिव कह दिया, जो छोटा वाला है उसको अपन ने जनरेटिव कह दिया। 60% जितने भी फ्लावर हैं प्लांट किंगडम के अंदर, उनमें सब में यही 2 सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन शेड हो जाता है मैच्योर होके। ठीक है, रिमेनिंग 40% ऐसे हैं जिसके अंदर द जनरेटिव सेल अंडरगो अनदर माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स।
जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। वीडियो आप भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, तो यू कैन सी इट अगेन एंड कीप इट देयर। ये छोटा सा वीडियो बनता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, जूम में, तो कोई जो बहुत बड़ा जगह नहीं गिर रहा, आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं उसको। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज, ये मैंने एक और ब्लॉग बनाया कमेंट, और यहाँ पे डाल देता हूँ कि इन 60% pollen grain there are 2 nuclei. One large irregular known as vegetative, while the other one is other small one is known as generative. ठीक है, अब remaining 40% plants shed their nuclei, their pollen grains, in 3 cell stage. In which the generative cell the generative nucleus undergo another mitosis to produce 2 male gametes, या आप इसको मेल सेल कह देंगे और मेल न्यूक्लियाई कह देंगे। ठीक है, तो जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो उसके अंदर आगे आगे जनरेटिव न्यूक्लियस जा रहा होगा, उसके पीछे पीछे 2 मेल गैमेट जा रहे होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ 40% और 60%। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद तो वो जो रिमेनिंग 40% हो, चाहे पहले वाले 60% हो, हर एक के अंदर जनरेटिव सेल जो है 2 मेल गैमेट बना चुकी होगी। जबकि 60% के अंदर जब पोलन ग्रेन शेड होता है तो उसमें 2 ही न्यूक्लियर रहते हैं, वो जो जनरेटिव सेल है वो अभी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, उनमें डिवीजन कब होगा, जब पोलन ट्यूब बन रही होगी। और ज्यादा बाकियों के अंदर 40% में क्या है, डिवीजन पहले हो चुका है, व्हेन इट इज इन द पोलन ग्रेन स्टेज ओनली। ओके, तो इट इज वेरी क्लियर और वेरी वेरी क्या कहते हैं, वेरी मच क्लियर कि जब जो पोलन ट्यूब बनेगी उसके अंदर 2 मेल गैमेट रहेंगे और एक वेजिटेटिव सेल रहेगी। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे जाती जाएगी, मेल गैमेट जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब ये तो अपना काम खत्म हो गया पोलन ग्रेन का, है ना। अब यहाँ पे कुछ उसकी इंपॉर्टेंस दिखा रखी है कि भाई पोलन ग्रेन के हमको कोई फायदा है क्या, ह्यूमनली बेनिफिट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम ऑफ द people, often leading to the chronic respiratory disorder that is asthma and bronchitis. ठीक है, स्पेशली इन दोज प्लांट जहाँ विंड पॉलिनेशन होता है, the plants which are showing wind pollination, they are producing millions of pollen grains and they are released in air and they are so tiny that you cannot see them. तो वो हवा में है। तो कई बार क्या होता है, जिनको एलर्जी या अस्थमा रहता है उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि भैया गार्डन वगैरह में घूमने नहीं जाएं, स्पेशली द फ्लावरिंग सीजन। उनको मना कर देते हैं कि भैया फ्लावरिंग सीजन में गार्डन में घूमने की जरूरत नहीं है, घर में भी अगर फ्लावर्स हैं तो खिड़की बंद रखें, क्योंकि जब वो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो देयर विल बी सो मेनी पोलन ग्रेन्स, जो टाइनी जैसे पोलन ग्रेन है वो हवा में रहेंगे और वो जो है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल कॉज एलर्जी और दे मे कॉज अस्थमा और ब्रोंकाइटिस एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग।
ठीक है, ये वेरी कॉमन सी चीज है। ठीक है, आजकल लोग बाग जो है अपने रूम के अंदर वो रूम क्या कहते हैं वो एयर फिल्टर लगा देते हैं, क्या कहते हैं रूम, what are they called, small devices जो ये डस्ट पार्टिकल्स और पीएम 2.5 वाले जो भी पार्टिकल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एसी में जनरली लगे हुए आते हैं, लेकिन वो कोई सेंस नहीं है, वो एसी थोड़े से टाइम तक थोड़े टाइम में इतनी हवा खींच लेता है वो कि वो पूरा चौक हो जाता है। एंड एवरी टाइम तो हम जो है मैकेनिक को नहीं बुला रहे हैं उसको साफ करने के लिए, तो शुरू शुरू में थोड़ा एक फंक्शन काम कर रहा है। दे आर गुड इन द अब्रॉड, फॉरेन वगैरह में जहाँ पे डस्ट पार्टिकल इतने ज्यादा नहीं है। हमारे देश में तो रोजाना इतनी डस्ट आती है कि अगर आप दूसरे दिन डस्टिंग नहीं करो तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी सारी धूल कहाँ से आई। ठीक है, सो पीएम 2.5 पार्टिकल्स वाला जो एसी वगैरह हमारा साफ हो, हम देख रहे हैं ना आजकल कुछ ऐड आ रहे हैं, वो कौन सा है वो आंटी जी हर जगह स्प्रे कर रही होती है, वो बोलता है हमारा पैनासोनिक का एसी सबको खा जाता है, आप सबको एब्जॉर्ब कर ले। कोई काम नहीं करते हैं, विद इन फ्यू टाइम जो है फ्यू ऑपरेशन वो चोक हो जाते हैं। एनीवे तो आप समझ गए ना, ये इसका एक नुकसान है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव फीचर है ना। ओके, आगे देखते हैं। it may be mentioned that Parthenium, that is commonly known as carrot grass, carrot grass जो है हमारे देश के अंदर अडल्ट्रेंट के फॉर्म में आई थी जब हमने मैक्सिको से गेहूं मंगाया था। ठीक है, इन द 60s, इन द अर्ली 60s वी इंपोर्टेड वीट फ्रॉम द मैक्सिको, तो उस टाइम गेहूं के अंदर ये पार्थेनियम भी आ गया था। ठीक है, एंड मेनी पीपल, हमारे यहाँ फार्मर्स की आदत होती है कि जो भी अच्छे टाइप का गेहूं होता है या अच्छे तरह की फसल होती है उनके बीज लेकर के जर्मिनेट कर देते हैं खेतों में। तो लोगों ने क्या, वो जो इम्पोर्ट किया था खाने के लिए उसी को लेकर के बो दिया, तो उसके कारण कई जगहों पे पार्थेनियम ग्रास जो है वो एक वीड बन करके उग गई, है ना। दिस वीड इज प्रोड्यूसिंग pollen grains in such a huge quantity that वो जो है वो एस्थमा बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सारे के सारे विंड पॉलिनेटिंग होते हैं। इफ यू रिमेंबर, इफ यू स्टडीड इन क्लास 11, all the gymnosperm plants are wind pollinating. That was the advantage over the bryophyte, thallophyta and pteridophyta. Bryophyte, thallophyta and pteridophyte जो हैं, they all require water for pollination. तो वो तो amphibian plants थे। thallophyta को हम amphibian नहीं कहते हैं because वो मिलते ही पानी के अंदर। और bryophyte and pteridophyte को हमने amphibian plant कहा था, वो मिलते जमीन पे लेकिन for pollination they require water. Gymnosperm totally avoided the use of water for their pollination. और उन्होंने पॉलिनेशन के लिए क्या डेवलप करा, विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन का उनका एडवांटेज हो गया, विंड तो हर जगह रहती है, जो वाटर से एम्फीबियन प्लांट थे उनको दिक्कत रहती थी। और हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा तो उसमें पढ़ा था, आपने एक क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज के अंदर कि व्हाई ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो है दे आर फाउंड क्लोज टू द वाटर सोर्सेज, क्योंकि उनको पानी चाहिए था पॉलिनेशन के लिए, उनको पानी चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म ने जो है वो टोटली उस चीज को अवॉइड कर दिया। तो मेरा खैर इस चैप्टर के अंदर तो हम तो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, फिर हम जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट वगैरह को क्यों याद कर रहे हैं। तो मेरा कहने का कारण है कि अगर आप हिली एरिया में गए हो, वैष्णो देवी की यात्रा की हो आपने, या किसी और जगह पे हिल स्टेशन पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। वो जो चित्रांशी उस टाइम वो लेकर के आए थे हर्बेरियम, एंड शी पुट सच अ बिग फर देयर। तो मैंने कहा था ये फिर उगते तो राजस्थान में भी, हमारे स्कूल में भी बहुत उगा रखे हैं हमारे गार्डनर ने। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके, वो सारे विंड पॉलिनेटिंग है, तो वो ह्यूज नंबर में होते हैं। यानी अगर आप उनके पोलन के सीजन में जाएंगे तो पूरी जमीन पटी रहती है उनसे, येलो कलर के पोलन ग्रेन से, एंड दे ऑल आर कॉजिंग ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, तो उन लोगों का जीना हराम हो जाता है, वहाँ पे नुकसान हो जाता है उनको, ब्रीदिंग एंड अस्थमा बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो हम एडवाइज नहीं करते हैं उन लोगों को जिनको एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है कि वो ऐसे सीजन में जो है उन हिल स्टेशन पे जाए। चलिए वापस आ जाते हैं। तो carrot grass that come in India as a contaminant with the imported wheat has become a ubiquitous to the in occurrence and causes pollen allergy. ये नेगेटिव फीचर है, यहाँ पे यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ pollen grains और हेल्थ इम्पैक्ट ऑन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज भी दिया है एक पैराग्राफ के अंदर। देखिए, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, उसके अंदर 3 न्यूक्लियाई है 40% में, तो और 60% में 2 न्यूक्लियाई है। तो हमने पढ़ा था किसी सेल में अगर डबल द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियाई है तो उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा मटेरियल रहेगा, ज्यादा फूड रहेगा। ठीक है, सो इट हैज बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। कई सारे लोग इसको फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज करने लग गए हैं।
पोलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट के जैसे, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये बी पोलन है ना, ये बी पोलन टैबलेट के नाम इन्होंने बी पोलन रख दिया है, तो ये बी पोलन है दैट इज विच इज कलेक्टेड बाय द बी, और ऐसे बी को ये पकड़ लेते हैं और उनमें से सारा जो भी होता है वो ब्रश से झाड़ लेते हैं, एंड देन दे आर सेलिंग देम इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ शेक्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, अब इसका कितना फायदा होता है हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि स्पोरोपोलिन के बारे में एक बात याद रख लेना कि हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिसॉल्व कर सके। तो ऐसे टैबलेट खाने से हमको क्या मिलने वाला है? आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह में जो है टाइलिन है, स्टमक में गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज नॉट एन एंजाइम बट केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर जाएंगे नीचे तो हमको मिलेंगे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना। इन सब से ये डिसॉल्व ही नहीं होने वाला, तो कितना ही पॉलन खाओ कोई फायदा ही नहीं है। अगर वो शाहरुख खान आता है सोना चांदी च्यवनप्राश का ऐड करने, और वो कहता है कि इसमें रियल में सोना और चांदी है, सोना और चांदी आप कितना ही खाओ साहब, वो तो कोई फायदा थोड़ी है, वो तो दूसरे दिन बाहर आ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है ऐसा मटेरियल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, उस पर हमारी बॉडी का कोई एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, तो वापस बाहर ही आना है ना। सेलुलोज पे काम नहीं कर रहा है तो सारा रफेज बाहर आ रहा है, तो व्हाट इज द सेंस? तो ये एक फैशन है लोगों को। हाँ, अगर ये सिरप वगैरह बना रहे हैं मोर्टल पेस्टल से, इसको पीस रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तब भी मैं नहीं मानता हूँ कि सारे के सारे पॉलीमेन फट जाएंगे, फिर भी कुछ हो सकते हैं। तो ये है, इट इज shown that is, देखिए ये लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं, pollen consumption has claimed to increase the performance of athletes and race horses। तो वो क्लेम कर रहे हैं ना, who knows वास्तव में ऐसा है भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए ऑन द ह्यूमन हेल्थ। मैं रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि इट्स मोर देन 30 मिनट्स, तो वो फिर बंद हो जाएगी। इससे अच्छा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। ओके।